Let us move to the next question. The bar graph given below represents the circulation of newspaper dailies in a town in 6 languages. The figures are approximately 200. Okay, so Urdu newspaper 200, then Tamil is 100, English is 500, yes, and Hindi is 800, Marathi is 300, Punjabi is 400. So 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर डेली जाता है दैट इज गिवन, इंफॉर्मेशन उसके बारे में गिवन है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रेड इन हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी एंड तमिल. हिंदी, पंजाबी, हिंदी, then Punjabi, after that Urdu, Marathi and Tamil. Urdu, Marathi and Tamil. तो टोटल न्यूज़पेपर इन पांचों लैंग्वेजेस में कितने जाते हैं? 8 + 4 12, 2 14, 17 and 1 1800 न्यूज़पेपर इन पांचों लैंग्वेजेस में डेली पढ़े जाते हैं. नेक्स्ट वन, find the excess number of newspaper read in Hindi than those in English. हिंदी में इंग्लिश से कितने ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं? हिंदी में 800, इंग्लिश में 500. सो हिंदी में 800, इंग्लिश में 500. So 300 more newspapers are read in Hindi than in English. तो हिंदी के कंपैरिजन इंग्लिश के कंपैरिजन हिंदी में 300 न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़े जाते हैं. नेम द लैंग्वेज इन विच द लीस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर रेड. सबसे कम, ओके, सबसे कम पढ़े जाते हैं तमिल. राइट द टोटल सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन द टाउन. डेली टोटल सर्कुलेशन कितना है? हमने 800, 400, 200, 300 एंड 100 ये सभी टर्म्स को तो ऐड किया था 1800, ये 500 और बचा, तो 18 + 5 2300. So you can write total circulation of newspaper 200, 100, 500, 834. So 1800 plus 500, 2300 newspaper in different languages daily read किए जाते हैं. Next one, study the double bar graph and answer the following questions. Which sport is liked the most by class 8 student? बताइए. Class 8 जो dark वाला है that is representing class 8, light blue is representing class 7. क्लास 8 के स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम कौन सी है? बताएं. यस, एनी वन ऑफ यू? क्रिकेट. सबसे ज्यादा जो बार की लेंथ है क्लास 8 के लिए that is in cricket. So which sport is liked most by class 8 students? That is cricket. How many students of class 7 like hockey and tennis in all? हाँ जी, क्लास 7 के कितने बच्चों को हॉकी पसंद है? 7. 7. टेनिस कितने बच्चों को पसंद है? That is 10, I think. Yes, 10 is there. So 7 plus 10 in all पूछे. So 7 plus 10, 17 students को हॉकी एंड टेनिस पसंद है. How many students are there in class 7? Class 7 में कितने students हैं? 7. Then this is 16. After that, so now जो class 7 के कितने students हैं जिनको बैडमिंटन पसंद है? That is 14. So let us move to the next one. Which sport is liked the most by class 8 student? Class 8 के students को सबसे ज्यादा गेम कौन सी पसंद है? That is cricket, right? Next one, how many students of class 7 like hockey and tennis in hall? Hockey 7, tennis 10. So कितने students? 7 plus 10, that is 17.
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितने स्टूडेंट है? 7 plus 16 plus 18 plus 10 plus 14. So 10, 10, 10, 10, 40 plus 7, 47, 8 plus 6, 14 plus 4, 8. 8 plus 7, 5. So 65 students are there. For which sport is the number of students of class 7 less than class 8? Class 7 के students कम है class 8 से. So class 7 के student यहाँ पे कम है. This light blue bar is less. है ना, इसकी हाइट कम है. सो क्रिकेट बाकी में बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, बाकी सभी गेम्स में बड़ी है. तो लेस स्टूडेंट्स किसमें है? क्लास 7 के. दैट इज which sport is the number of class 7 student is less than class 8? That is cricket. For how many sports number of class 8 are less? सिर्फ एक क्लास 8 के स्टूडेंट क्रिकेट में ही ज्यादा है, बाकी चारों स्पोर्ट्स में क्लास 8 के स्टूडेंट कम है. देखो, this bar is shorter than the light blue, same in all the 4 cases. So there are 4 sports जिसमें क्लास 8 के स्टूडेंट लेस है than the class 7 students. Find the ratio of students. So required ratio who like badminton in class 7. Class 7 में badminton कितने बच्चों को पसंद है? 14. To the student who like tennis in class 8. Class 8 के tennis के students are 7 students are there. So 7 2s are 14. So 2:1 is the answer. Clear everyone? Information is represented by the above double bar graph. क्या information दी गई है? months और sales in lakh. ब्रांड ए और ब्रांड बी की कितनी सेल हुई लैक्स में? फ्रॉम जनवरी टू जून. सेल्स ऑफ ब्रांड ए एंड बी फ्रॉम जनवरी टू जून. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन. देखो ये वाला बार कैसा बना है? हॉरिजेंटल है ना. हम ज्यादातर वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं, लेकिन दिस इज हॉरिजेंटल बार ग्राफ. ओके. In which month sale of brand A decreased as compared to previous month? ब्रांड ए की सेल किस मंथ में प्रीवियस मंथ से कम हो गई? ये ब्रांड ए प्रीवियस मंथ से कम हुई. अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे 31, 34 अप्रैल से मार्च में कम हुई, प्रीवियस मंथ से कम हुई. 34 थी, 30 हो गई, तो ये कम हुई पिछले महीने से. 34 थी, 30 हो गई. यहाँ पे 40 थी, 42 हुई, 57, सब में बड़ी है 31 से 34. लेकिन मार्च में फरवरी के कंपैरिजन में सेल कम हुई. फेब में 34 लाख की हुई, मार्च में 30 लाख की हुई. सो इन विच मंथ सेल ऑफ ब्रांड ए डिक्रीज्ड? मार्च एज कंपेयर टू फेब. What is the difference in sale of both the brands for the month of June? जून में दोनों ब्रांड की सेल में कितना डिफरेंस है? 57 lakhs and 54 lakhs. So difference will be 57 minus 54, that is 3 lakhs. Find the average sale of brand B. Brand B, dark blue color is for brand B. 36, 38, 43. 36, 38, 43. After that, 35, 45, 35, 45, 54. So for 6 months, so average sale find करनी है, divided by 6. Find the total. 3 plus 3 6 plus 4 10, 13 plus 4 17 plus 5 22. Tens place पे 8 plus 6 14 plus 3 17 plus 5 22, 5 22 plus 5 27 plus 4 31. So 251 by 6. फाइंड करेंगे एवरेज
6 4s are 24, 11, 6 1s are 6, 5 is remainder 50, 6 8s are 48, 41.8 lakhs is the average sale. List all the months for which the sale of brand B was less than A. B की A से less थी, जून में B की कम है, 42 45 ज्यादा है, अप्रैल में कम है, इसकी 40 इसकी 35, इसकी ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है. सो अप्रैल एंड जून दीज आर द 2 months जिसमें ब्रांड बी की सेल ब्रांड ए के कंपैरेटिवली कम हुई है. Find the ratio of sales of brand A as compared to brand B for the month of January. Brand A पहले लिखा है, brand A की है 31 and 36. So required ratio 31 by 36. Cancel नहीं होता, so ratio will be 31 ratio 36. Clear? Yes. कोई doubt? नो. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. स्टडी द डबल बार ग्राफ अगेन. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मिनिमम टेम्परेचर इन द मंथ्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. व्हाट इंफॉर्मेशन इज कंपेयर्ड इन द बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ? सो मिनिमम टेम्परेचर फ्रॉम November to February in the year 2008 and 2009. 2008 में और 2009 दोनों years में इन particular months में क्या temperature changes हुए वो हमें इस data में given है. So let us start with the next part now. Calculate the ratio of minimum temperature in the year 2008 to year 2009 for the month of November. Okay. सो पहले कौन सा ईयर का है? 2008. 2008 लाइट ब्लू, सो 18 रेशो 15. जो भी 2 से पहले लिखा है उसका न्यूमिनेटर में आएगा, 2 के बाद वाली टर्म डिनोमिनेटर में. 3 5s are 15, 3 6s are 18. So required ratio is 6:5. For how many months was the minimum temperature in year 2008 greater than 2009? Name those months जिसमें 2008 का टेम्परेचर ज्यादा था. ब्लू, लाइट ब्लू वाली बार जिसमें ज्यादा है, बड़ी है. सो नवंबर एंड फरवरी, ये 2 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर ज्यादा है, नवंबर एंड फरवरी. Find the average minimum temperature for the year 2008. 2008 के लिए average temperature 18, 11, 4, 12. 18, 11, 4, 12. 4 months के लिए divided by 4. Okay, 10 plus 10 plus 10, 30, 8, 9, 10, 11. 30 plus 11, 41 plus 4, 45 by 4. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 is remainder, 4 2s are 8, 4 5s are 20. So 11.25. In which month is the variation in two temperature maximum? दोनों टेम्परेचर में कौन से मंथ में मैक्सिमम वेरिएशन है बताइए. इसमें डिफरेंस देखो 4, इसमें डिक्रीज हुआ, सबसे ज्यादा वेरिएशन इसमें है. 15 और 18 में डिफरेंस इज 3, इन दोनों में डिफरेंस इज 1, चाहे डिक्रीज हुआ चाहे इंक्रीज हुआ. इसमें डिफरेंस इज 4. तो किसमें वेरिएशन ज्यादा हुई? फेब में. क्लियर एवरीवन? आई नो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि बार ग्राफ्स को डिस्कस करना, बट हमें क्वेश्चंस तो करने हैं प्रैक्टिस के लिए. The following table shows the average intake of nutrients in calories by rural and urban groups in a particular year. Using a suitable scale for the given data, draw a double bar graph. Okay, हमें डबल बार ग्राफ बनाना है. इसमें आप लोग बनाओगे कैसे? एक तरफ रूरल और अर्बन, दो तरह की बार्स बनेंगी, रूरल और अर्बन.
और यहाँ पे क्या आएगा, फूड स्टफ, कि कौन सा फूड स्टफ है, पल्सेस, रूरल में कितनी, अर्बन में कितनी, लाइक दिस। और यहाँ पे क्वांटिटी उनकी 35, मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ पे 9 है, 250 तक जा रही है, तो कितने कितने का गैप लोगे आप? हाँ जी, 50-50 का ले सकते हो। यस, 10-10 का लोगे तो 25 बनेंगी नहीं आपकी, या 30-30 का ले लो तब भी 8 बन जाएंगी, 8 to 9, 30-30 का भी ले सकते हो, जैसे आपको सुटेबल हो वैसे आप गैप 50 का ले लो, 50 का ले लो, 30 का ले लो, 20 का ले लो, चॉइस इज योर्स। तो इसमें सिर्फ हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Study the double bar graph and answer the question. What information is given? हाँ जी, क्या information है? Number of students in different sections में कितने बच्चे हैं? क्लास 7 के डिफरेंट सेक्शंस में कितने कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज कितने गर्ल्स, लाइक दिस। Find the total number of boys in all the section. Boys are represented by dark blue. So 15, then 30, after that 20. This is again 20 and this one is 25. So number of boys 15, 30, 15, 30, 20, 20, 25. So class 7 के different section में how many boys are there? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110. Right? 110 boys are there. In which section number of girls is greater? Girls light blue. Light blue वाली बार किसमें ज्यादा है? इसमें डार्क ब्लू से बड़ी है, so 7. So let us move to the C part now. In which section the number of girls is greater than number of boys? Number of girls greater किसमें है? देखो सेक्शन D में गर्ल्स की जो बार्स है वो लाइट ब्लू से रिप्रेजेंट हो रही है, एंड सेक्शन A. So section A and section D में number of girls are more. Section A and section D. In which section the number of boys is maximum? Number of boys मैक्सिमम कौन से सेक्शन में है? सेक्शन बी में नंबर ऑफ बॉयज आर मैक्सिमम. नेक्स्ट वन, इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लीस्ट? गर्ल्स सबसे कम कहाँ है? लाइट ब्लू बार जो है सबसे कम कौन से सेक्शन के लिए? सेक्शन सी के लिए. सो सेक्शन सी में नंबर ऑफ गर्ल्स आर लेस. क्लियर एवरीवन?